Hi, good evening. मेरा नाम वेदांत है and I was just reading Vivek Chudamani, a book written by Sri Shankaracharya, and while reading that book, I got some thoughts and some I was contemplating on how the universe works, and I got some answers, so I just felt like sharing it with you guys. And this is about karmas, how karmas work, how the entire system of karmas, which is, I think, universally accepted in every culture, in every religion. Uh, not if not religion, then at least in every culture. Basically, it's spreading all over the world, and people are recognizing it for what it is because they are finding some kind of truth in it. They're finding some sort of logic. But we in Hindu mythology, in our philosophical books, uh, in our scriptures, it's already written and very well explained. So I'll just uh, quickly take you guys through that. तो बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि ये दुनिया में बोलते हैं ना फिलोसफिकली कि देर आर नो एक्सीडेंट्स. सो आर देयर एक्सीडेंट्स? Do things happen randomly or do they not? And if we assume that things happen randomly, then we'll never be able to uh, know beyond a certain point because things are happening randomly. It was just an accident. वहाँ पे किसी भी चीज़ का रीजनिंग खत्म हो जाएगी, किसी भी चीज़ का नॉलेज विल एंड देयर. आज मेरे साथ बुरा हुआ, ओ इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट. आज मेरे साथ अच्छा हुआ, ओ इट कुड बी जस्ट लक. And when you think about it, if you believe in luck, you have to believe in karma. Because luck की अपनी definition नहीं होती है. Because saying that I'm lucky or destiny had it in my life, that is indirectly accepting that you deserve that, or someone thought you deserve it and that is why they gave it to you. And what is that someone? इसका मतलब there is a separate entity which is taking care of all this. तो बस वही एक शेयर करना था एक चीज. तो कर्मास कैसे काम करते हैं, I'll tell you guys today. तो I'll tell you guys in detail. तो मे बी आपने कहीं स्क्रिप्चर्स में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो भी ठीक है, अभी आप जान लोगे. Yeah, so we have established that there is a system, that there is a process. Otherwise, you cannot justify the things that happen to people. कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं, कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं. ये क्यों होता है? उनकी तो किस्मत अच्छी है, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे. ये सब कर्मा से रिलेटेड है. Now that we have accepted that there is a system, we should dig deeper because that is what philosophy is all about. It is not about settling with a random answer and then and then being able to sleep at night peacefully. But it is about digging deeper, going higher, transcending the human limitations. Because अगर philosophy नहीं होती तो लोग ये जो लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, बहुत अपने लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, ये इनके कोट्स या सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं बनती. बिकॉज इन सबका बेस is sharing some kind of knowledge which is not out there, which is not sensible, which is not limited to senses. तो ये सिस्टम जो है कर्मों का, इट वर्क्स फॉर एग्जांपल, शुरू में जैसे हर इंसान की एक कर्मास आर बेसिकली ट्रांजैक्शंस. दे आर अकाउंट्स के. फॉर एग्जांपल, हम हमारा सोचना या हमारा कुछ करना इज अ कर्म and basically an action. And thoughts, words, deeds,
these three are actions. When we are thinking about someone, it is an action. उसको भी कर्मों में काउंट होता है. जैसे अगर हमने किसी को मन में गाली दी, तो वो इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में हमें गाली देगा. और इन कर्मों पे हमारा पूरा लाइफ डिपेंड करती है. कैसे? क्योंकि ये जो हमें बॉडी मिलती है, द बॉडी दैट वी हैव राइट नाउ is based on that system, is based on the kind of karma we have did, and that is not just for others. या हम पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी के थ्रू हमने तो दूसरों के साथ कर्मा किया, हमारी बॉडी का क्या इसमें था, हमारे बॉडी कैसे मिलती है. हम अपनी बॉडी को भी जैसे ट्रीट करते हैं. अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या अगर हम ज़्यादा बाहर का खाते हैं तो हमारा पेट खराब होता है, तो वो हम एक तरह से हमारी बॉडी के अगेंस्ट एक कर्म कर रहे हैं. या हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं, तो वो एक कर्म होता है हमारी बॉडी के अगेंस्ट. और उस हिसाब से हमें नेक्स्ट टाइम बॉडी मिलती है जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी, बिकॉज वी टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो वील गेट अ बॉडी विच इज क्लोजर टू दैट, विच इज मोर inclined to do what we want, because it works based on us. तो एक कर्मास एक ट्रांजैक्शन है बहुत लंबा, जो भी हमने सोचा हो हमारी बॉडीज के थ्रू. एंड व्हेन आई से बॉडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री बॉडीज. तो वेदांतिक वे में, knowledge में, there are three bodies. We have three bodies. One is the gross body, this body which can be seen and felt. Second is the subtle body, which consists of the antakarna, which are four parts. It has buddhi, the intelligence. It has ego. It has the mind, and it has memories. ये subtle body का part है. और उसके अंदर एक body है which is causal body, which has the entire list of the karmas that we have done in all our lives. ये थोड़ा far fetched लग रहा होगा, but I'll explain you logically. तब समझ में आएगा, I hope. तो ये जो कर्मा की लिस्ट है, causal body, it's called causal body because it is the cause of why we have this body and we have this life. Can we imagine life without a body? It is very difficult to imagine because इस बॉडी के हिसाब से इसके फ्रेंड्स हैं, इसकी फैमिली है. बॉडी हटा दो तो ना फ्रेंड्स होंगे, ना फैमिली होगी, ना जॉब होगा, ना हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें शादी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब बॉडी की इच्छाएं हैं. अब बॉडी हटा दो इक्वेशन से, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी. तो दिस लाइफ इज नथिंग बट द टाइम of this body's existence, which is fairly simple. And ये कर्मा कैसे डिसाइड होते हैं, ये बॉडी कैसे मिलती है, अगर यहाँ तक आप मान गए हो मेरी बात, तो थोड़ा आगे का बता देता हूँ कि कर्मास, फॉर एग्जांपल, हमने जो सोचा वो भी एक कर्मा है, जैसे मैंने कहा. तो हम दिन में एटलीस्ट 10,000 to 20,000 कर्मास करते हैं, बिकॉज there are thoughts. I think there are more, because more than 20,000 easily, क्योंकि इतना हम सोचते हैं. We do a lot of things. When we are thinking about a celebrity, when we are watching something on Instagram, when we are tweeting something, when we are commenting on someone's post, that is a karma. That is also karma. That is why they call this Kalyug, because it is taking us, हमें बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं materialistic things में. Which I think all of us have a good idea about. तो ये एक लिस्ट है, एक ट्रांजैक्शन है, which are this list is saved in our causal body. बोलते कारण शरीर. इस कारण शरीर में ये पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट के बेसिस पे हमें बॉडी मिलती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारी एक है 1 crore कर्मा टोटल. तो ये 1 crore हमारी हार्ड ड्राइव या हमारी डीप डाउन सॉफ्टवेयर में सेव है, विच इज द कॉजल बॉडी. एंड इसके अंदर 1 crore कर्मा है ओवर आवर लाइफ टाइम्स. तो उसमें से कुछ 20% कर्मास
हमें ये बॉडी देगा। और इन कर्मा की लिस्ट कैसे होती है कि so and so person did so and so thing for me, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो गया कि I did so and so thing for so and so person। थर्ड हो गया कि so and so person did so and so thing against me। फिफ्थ हो गया कि so and so person did so and so thing which I liked or which I didn't like। सेवेंथ हो गया कि I did something for someone which he hated or she hated। एट्थ हो गया कि I did something for someone which they really liked। तो ऐसे करके एक एक कर्म की लिस्ट बनती है। हमने किसी के बारे में कुछ सोचा हो, अच्छा सोचा, वो आ जाता है उस लिस्ट में। बुरा सोचा आ जाता है। हमने किसी के लिए अच्छा किया वो आ जाता है। हमको किसी की बात का अच्छा लगा वो आ जाएगा। तो ये कर्मास आते रहेंगे विद ईगो। वो अलग कॉन्वर्सेशन है कि ईगो का कर्मा से क्या रिलेशन है, लेकिन ये एक पूरी लिस्ट है जो कॉजल बॉडी में सेव्ड है। और इसके हिसाब से वो 20% कर्मा, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में 20 लाख कर्मास विल प्ले इन दिस बॉडी। और उन कर्मों के हिसाब से वी गेट दिस बॉडी। लॉजिकली अगर इन अगर वो 20 लाख कर्म है तो वो कर्म कैसे दिखेंगे कि so and so person did so and so thing which I liked, right? तो अब कर्मा हाउ डज कर्मा वर्क, बेसिकली बता देता हूँ मैं। हम किसी के लिए कुछ करते हैं, फिर वो हमारे लिए वो करता है और ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो जाता है। What you give out there, you will receive exactly the same. You give love, you will get that love sooner or later. तो ये लेना देना इज कर्म that we have established। तो ये so and so did so and so for me, तो वो खत्म कब होगा जब I will do the same intensity of thing for that same person which he will also like। If he did something for me which I like, then I'll also do something for him or her which he will like, and that is how वो कर्म खत्म होगा। तो वो 20 लाख कर्म से हमारी बॉडी बनती है और उस बॉडी के हिसाब से, उन कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि बॉडी की हाइट कितनी होगी, वो दिखेगा कैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे कर्म किए हैं पिछली लाइफ में या किसी भी लाइफ में, वो मुझे नहीं पता कौन सी लाइफ में क्या किया है, लेकिन अगर हमने दूसरों की बुराई करी है, दूसरों की, if we are if we have body shamed people, if we have made a lot of fun of their bodies, then we will get that kind of a body। क्योंकि हमने बुरा 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 बाहर भेजा है तो बुरा 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 हमारे साथ होता है, तो हमको उस हिसाब से बॉडी मिलती है विच विल मेक अस सफर। तो ऐसे ये एक सिर्फ एक एग्जांपल है। हमारी आई साइट वीक है या स्ट्रांग है, हमारे सर पे कितने बाल होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, इन सब के भी फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें इतनी माइन्यूट डिटेल्स के साथ सोच सोच के बनाई गई है। तो ये हम जो भी कर्म करते हैं, इसलिए तो लोग बोलते हैं, इसलिए रूल्स बनते हैं, इसलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्च्यू, देयर इज समथिंग कॉल्ड राइचियसनेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड टॉलरेंस। ये वर्च्यूज क्या है? टू टॉलरेट what other people say, to to be respectful to others, to always stay in the moment। because जब हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं। if we are thinking about right now, then we are not thinking about anything else but the task in hand, and उसमें हम कभी ओवरथिंक नहीं कर सकते। तो वर्च्यूज का इससे कनेक्शन है, वर्च्यूज का कर्म से कनेक्शन है, और कर्म का कनेक्शन है लाइफ से, और हमारी लाइफ का कनेक्शन है डेस्टिनी से। इसका मतलब है डेस्टिनी, लक, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो लोग ये सुन के अगर कोई बोलता है कि नहीं ये सब बकवास है कर्मों पे, आई डू नॉट बिलीव इन किस्मत, आई डू नॉट बिलीव इन डेस्टिनी, आई जस्ट बिलीव इन माई एक्शंस, दैट इज ट्रू। मैं इतना घुमा फिरा के कर्मों, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन कर्मा, बट आई अग्री दैट इट इज ऑल इन आवर हैंड्स, इट्स जस्ट वी डू नॉट रियलाइज इट। तो 4 तरह के कर्म होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो जो 1 करोड़ कर्म मैंने बोले जो स्टोर्ड हैं, उनको संचित कर्म बोलते हैं। उन पे जो 20% कर्मों से जो बॉडी मिलती है हमें, जिस हिसाब से हमें बॉडी मिली और जिस हिसाब से हम दूसरों से एक्शन दूसरों के साथ करेंगे कर्म, तो उन कर्मों को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म।
जो 20% या 5% या 10% कर्म इन प्लेस है, इन एक्शन है, जिस जो आ गए हैं अभी, जो हमें मिलेंगे, चाहे हम कितना भी एनलाइटनमेंट कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी नीचे गिरे, हमारी किस्मत कैसी होगी, ये जो जिंदगी है इस बॉडी की, ये डिसाइडेड है। ये कोई नहीं बदल सकता। ये हम बदल सकते हैं अपने कर्म अभी करके, लेकिन जो हमारे साथ होना है वो फिक्स्ड है। अच्छा होना है तो अच्छा ही होगा, बुरा होना है तो बुरा ही होगा। इसलिए ही इसका रीजन कैसे बता सकते हैं यहाँ पे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही करता हूँ लेकिन मेरे साथ सिर्फ बुरा हो रहा है। क्योंकि तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम में अगर लिखा है कि बुरा होना है, वो कर्म अगर प्ले में है तो वो प्ले में आके ही रहेंगे। तो भले आप विष्णु भगवान हो, आप राम बन के पैदा हुए, तो आपके लाइफ में अगर वो कुछ कर्म है, कुछ आपको श्राप मिले हैं, तो वो आपको मिलेंगे। उनको आप रोक नहीं सकते। जो तीर एक बार छूट गया वो छूट गया, वो वापस नहीं आ सकता, वो हवा में नहीं रुक सकता। तो आपने कुछ लोगों के साथ अच्छे कर्म किए हैं बहुत लाइफ में, और अगर आपके अच्छे कर्म अभी प्ले हो रहे हैं, तो आप कितने ही बुरे इंसान हो, आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि किसी भी फाइनल में या किसी भी स्पोर्ट्स में दो टीम इक्वली दे वांट टू विन। आई नो वन कैन से दैट दिस टीम डज वांट टू विन मोर देन दैट टीम, बिकॉज दोनों को ट्रॉफी चाहिए। क्यों एक ही टीम जीतती है? ये सब क्यों, ये सब क्या, इन सब के रीजंस यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। कभी कभी बोलते कि एक टीम ने फुटबॉल में 20 शॉट मारे, उनका एक ही गोल गया, और दूसरी टीम ने 3 शॉट मारे, उनके तीनों गोल चले गए। ये क्या नाइंसाफी? दिस इज नॉट नाइंसाफी, दिस इज रिलेटेड टू देयर डेस्टिनी, व्हिच इज रिलेटेड टू देयर एक्शंस इन सम पार्ट ऑफ लाइफ, एंड व्हिच इज रिलेटेड टू देयर ओन सेल्व्स। तो ये प्रारब्ध जो 1 करोड़ कर्म है, उन्हें प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। उसमें से जो संचित कर्म है, जिसकी ये बॉडी प्ले हो रही है, ये 2 टाइप के कर्म है। बाकी थर्ड टाइप का कर्म है जिसे बोलते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब बाकी के जो 80% है, जो फ्यूचर में प्ले होंगे, जो इस लाइफ में खत्म होंगे, जो बाकी के बचे हैं सेव फ्यूचर वाले, उनको आगामी कर्म बोलते हैं। और इसके अलावा एक क्रियामणि कर्म है, जो अभी इस समय जो चल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के साथ जो हो रहा है वो कर्म पे बेस्ड है, लेकिन हम जो नए कर्म कर रहे हैं उनको क्रियामणि कर्म बोलते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ कि एक कर्म लिखा हुआ है हमारे संचित कर्म में, बड़ी लिस्ट में एक कर्म है, एक कर्म कि एक्स वाई जेड पर्सन डिड एक्स वाई जेड थिंग फॉर अस विच वी लाइक। ये एक कर्म आ गया प्रारब्ध में। वो प्रारब्ध का मतलब इस बॉडी में, मेरी लाइफ में वो एक कर्म होगा कि so and so person did so and so thing for me which I liked। तो वो खत्म कैसे होगा? that I will do so and so thing for so and so person in this life which he will like। ठीक है, अब ये कर्म मेरे को करना है। अब उस दिन मेरा मूड अच्छा होगा और वो कोई स्ट्रेंजर आएगा, वो मुझसे थोड़े पैसे मांगेगा या मेरी थोड़ी सी हेल्प मांगेगा और मैं कर दूंगा। पूरा वैसे इस हिसाब से होता है। उस दिन मेरा मूड अच्छा होगा, या तो आ, मैं किसी मेरा कोई वो अच्छा दोस्त होगा, लेकिन उसको सडनली मेरी जरूरत होगी और मैं उस दिन उसकी हेल्प करूंगा। कैसे भी आ सकता है वो। उस दिन मैंने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है, यहाँ पे कर्म क्रॉस हो गया, यहाँ पे संचित और प्रारब्ध प्रारब्ध खत्म हो गए। आगामी का से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने उसकी हेल्प दोबारा से करी, जब कर्म की साइकिल खत्म हो गई, ट्रांजैक्शन इज ओवर, उस सेकंड अगर मैंने ये सोचा कि देख मैंने उसकी हेल्प की, वो भी मेरी हेल्प करेगा, बस इतना सोचना ही, इतना इंटेंशन ही, दैट आई हेल्प्ड हिम, नाउ ही विल हेल्प मी, दिस इज अ क्रियामणि कर्म। वहां से आपका एक नया कर्म शुरू हो चुका है। इसलिए लोग बोलते हैं सेल्फलेस रहो, इसलिए लोग बोलते हैं सेल्फिश मत रहो, इसलिए लोग बोलते हैं किसी को आगे जाना है उससे जाने दो, इसलिए लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक में किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, इसलिए लोग शांत लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए लोग पीपल लाइक पीपल हु आर रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, दैट इज व्हाई पीपल लाइक कंपैशनेट पीपल, दैट इज व्हाई the universe likes people who are tolerant, who are patient, who have these virtues। क्यों? क्योंकि अगर इस समय अगर मैं सेल्फलेस हूँ, अगर मैंने वर्च्यू बनाई सेल्फलेसनेस की, तब मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि अब भी वो भी मेरे साथ करना चाहिए, मेरे को एक्सपेक्टेशन होगी, तब वो नहीं आएगा। तो मेरा क्रियामणि कर्म नहीं बना, तो मेरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अगर मैं उस समय सेल्फिश होता, अगर मेरे में वर्च्यू नहीं होती, तो मेरे में आता वो थॉट कि अब ये करेगा मेरे लिए, उससे एक कर्म नया बनेगा। अब वो क्या होगा? वो आगामी में चला जाएगा। अब वापस वो मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा,
और फिर मुझे वापस उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें बॉडी मिलती रहेगी और हम इस साइकिल में, एंडलेस साइकिल में फंसते रहेंगे, सिर्फ फंसते रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें, उसके लिए हमें हमारे पास वर्चूज होनी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा फिलोसफिकल स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक माइंडसेट होना चाहिए। अब इसे कोई उल्टा कर देते हैं। एक प्रारब्ध कर संचित में से एक प्रारब्ध आया जिसमें लिखा है कि मैंने किसी जन्म में किसी के साथ बुरा किया, तो अब खत्म कैसे होगा, वो मेरे साथ बुरा करेगा, राइट, गिव एंड टेक। अब इस जन्म में मेरे साथ बुरा होना है, ठीक है। तो अभी मैं कहीं फॉर एग्जांपल मैं ऑटो में गया और उस रिक्शा वाले ने मेरे से झगड़ा कर लिया और उसने मेरे से छुट्टे नहीं दिए, 20 रुपए ले लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी वर्च्यू प्ले होगी, इफ आई एम टॉलरेंट और नॉट, इफ आई एम पेशेंट और नॉट, इफ आई एम कंपैशनेट और नॉट। उस समय इफ आई हैव forbearance, इफ आई हैव टॉलरेंस, एंड इफ आई थिंक कोई बात नहीं, जाने दो, which is a godly virtue, which is a giving virtue, it's not receiving virtue, it's a giving virtue। वो करेंगे उस समय तो वो कर्म खत्म हो जाएगा कि मैंने किया होगा, उसने कर दिया, दी एंड, राइट। लेकिन अगर उस समय मेरे पास ये वर्च्यूज नहीं है, अगर मैं सोचूं कि इसने मेरे साथ बुरा किया, अब देखना अगले जन्म में मैं करूँगा, फिर से साइकिल शुरू हो गई, फिर क्रियामणि कर्म शुरू हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हर छोटी सी छोटी कर्म, हर छोटी सी छोटी चीज का एक आंसर है, हर चीज का एक कॉज है। दिस यूनिवर्स वर्क्स ऑन टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, नथिंग इज बियॉन्ड दैट। टाइम के बाहर कोई चीज नहीं है पॉसिबल। कोई चीज पॉसिबल है, अगर आपको लग रहा है तो आप बताइए, क्योंकि कोई चीज पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे हर चीज का एक कॉज है। मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका कॉज है। किसी के पास कोई सोफा है, उसका कॉज है। अगर आप मुझे यहाँ सुन रहे हो तो उसका एक कॉज है। और टाइम और कॉज हो गया स्पेस। इस दुनिया में कोई भी चीज स्पेस के बाहर नहीं है, सारी चीजें स्पेस के अंदर है। और इन चीजों से आप एक और चीज सीख सकते हो। स्पेस से आप क्या सीख सकते हो, टाइम से आप क्या सीख सकते हो, कॉजेशन से आप क्या सीख सकते हो, नेचर से आप क्या सीख सकते हो। आप पेड़ों से सीख सकते हो। लोग कहते हैं कि पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि वो कितने फॉरबेयरिंग होते हैं। धरती माँ से सीखना चाहिए कितने पेशेंट होते हैं। धरती माँ से सीखना चाहिए कि कितना पेशेंस है उनमें। सन से सीखना चाहिए कि वो किसी को जज नहीं करता। कोई अच्छा इंसान रोड पे जा रहा है, कोई बुरा इंसान रोड पे जा रहा है, दोनों को सेम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देगा। टाइम से हमें सीखना चाहिए कि कीप बीइंग कीप स्टे इन प्रेजेंट, कि स्लो मत हो लाइफ में, ना ज्यादा फास्ट हो। हैव द सेम अमाउंट ऑफ पेस इन योर लाइफ। कीप बी माइंडफुल, दैट इज द वर्च्यू वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। स्पेस से आप क्या सीख सकते हो, स्पेस से आप ये चीज सीख सकते हो कि अब स्पेस स्पेस घर के अंदर सेम है, स्पेस घर के बाहर सेम है, स्पेस लैपटॉप के सामने सेम है, लैपटॉप के पीछे सेम है। अभी अगर मैं घड़ा ले लूँ, पॉट, तो उस वो स्पेस जो उसके अंदर है वो उसकी शेप में आ जाएगा। अगर मैं बाल्टी ले लूँ तो बाल्टी की शेप में आ जाएगा। इफ आई टेक स्पेस इन अ बलून, तो वो बलून की शेप में आ जाएगा। स्पेस कभी कंप्लेन नहीं करेगा। तो दूसरों को कंडेम करना, कंप्लेन करना, ये नहीं करना चाहिए। ये वर्च्यूज सिर्फ फिलोसॉफिकल वर्च्यूज नहीं है। इफ यू रीड द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो डेल कार्नेगी की बुक है, उसमें भी आपको ये सब सीखने को मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस बुक इज still so relevant for 150 years. Even after 150 years, that's like more than a century, like 1.5, अब तक relevant क्यों है? Because it is philosophical, it's not just self help। लोग इसको बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं, सेल्फ हेल्प बुक है चलो खत्म करो बात, नहीं, बट ऐसा नहीं होता। उसमें फिलोसॉफिकल टच है, उसमें सब सीख सकते हो। आप एपिक्टेटस की बुक पढ़ लो, आप स्टोइसिज्म की बुक पढ़ लो, आप वेदों की कोई भी उपनिषद पढ़ लो, आपको सब जगह सेम वर्च्यूज ही मिलेंगे। आपको कहीं
अलग वर्च्यू नहीं मिलेंगे। बदला लेना चाहिए आपको, कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताया? इसीलिए ताकि आपके कर्म खत्म हो जाए। रीजन घूम फिर के यहीं आएगा, भले आपको पता हो या नहीं। और ये लॉजिक हर चीज पे अप्लाई होता है। तो we need to have these virtues because unknowingly we are only doing good to ourselves. We like, for example, guys like an attractive body. अब उसमें उस attractive body में उस लड़ उस लेडी का क्या हाथ है? Maybe है because she has got that kind of uh, personality. या कोई इंसान अमीर है तो उसको उस तरह की लाइफ मिली है। अब if I work out and if I go to gym regularly, I'll have a good body. It's like simple कर्म जो आपके सामने, आपके हाथ, आपके आंखों के सामने होते हैं। If I take care of my skin, skin will be better. Simple. इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है। तो philosophy is not as deep, is not as complicated as people have made it out. But yeah, so इस वीडियो के through I just wanted to tell you guys how karmas work and what is the importance, what is the significance our of these virtues that every religion and every culture and every concept talks about. ये या तो आप सच में करो अपने खुद से, नहीं तो इसी के बाद लोग ने करना बंद कर दिया तो लोगों ने रूल्स बनाने लग गए कि 1 महीना कुछ नहीं खाना है, उपवास रखना है। हर रिलीजन में है, किसी ना किसी रिलीजन में कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि खुद से नहीं करेंगे तो रूल्स बनेंगे क्योंकि ये जरूरी हैं। और सच बताऊं, अगर थोड़ा सैक्रिफाइस करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके जब आप ये सब करोगे, you will see the difference in yourself and you will grow in every aspect of your life. That happiness is not the same happiness which you can find anywhere else. वो happiness कुछ अलग ही है। You are more than happy, yeah. You're like, you're ecstatic, you're proud of yourself, you're full of bliss. And on this note, I'll end this video. और अगर मुझे ऐसी कुछ हिट होगा while reading, I'll definitely make another video. Thank you for listening and I hope you liked it. Thank you so much.